Hello everyone, welcome to the fifth and final part of method of images. So far we have discussed uniqueness theorem as well as method of images for a spherical conductor. In this video we are going to discuss method of images for an infinite grounded metallic plate, and we are going to discuss method of images to find out the electric potential and electric field at any point. We are going to do it using a question itself, and we are going to use logic instead of using Poisson or Laplace equation, right? So without further ado, let's start our discussion on method of images. Okay, so let's say we have an infinite plate in xy plane, and we have a point charge, right? And the coordinate of the point charge is in z direction. So this is a z direction, and the z coordinate of this point charge is z equal to z naught, or we can say that it is z equal to d. Doesn't matter. This distance is d. We have a point charge q, and this infinite plane is grounded. That is potential for this is zero. तो डेफिनेट सी बात है, इस क्यू चार्ज की वजह से तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, राइट? तो कुछ ना कुछ चार्ज इस पे इंड्यूस हुआ होगा सच दैट पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए, करेक्ट? So we are taking it in a form of example. We are going to find several things. Let's say at any point P, x comma y comma z, we have been asked to find electric field at P. It is also asked potential at any point P, and induced charges, induced charge density, and induced charge, and induced charge on plate. Also, we can find force on Q, force on charge, and finally we can find out the potential energy of the system. So इतना अगर हमने कर लिया तो एटलीस्ट हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो एक पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं, वी कैन डू इट फॉर मोर देन वन चार्जेस आल्सो, बट slowly this is the most basic thing, right? First things first, we can use our equation, but we can't use it because we have not learned how to use this equation. So we are going to find out potential and all using logic. So we are not going to use Poisson equation, right? तो सबसे पहले ये चीज देखी जाए, ऑब्जर्व की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस प्लेट पर होगा कैसा, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा? तो डेफिनेट सी बात है, हमें पता है दैट सिंस इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आकर परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. प्लेट पर आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बिकम परपेंडिकुलर टू द प्लेट. So we can assume that there is a point charge of same magnitude at same distance below the plate. इस पॉइंट पर हमारे पास एक माइनस क्यू रखा हुआ है एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट. क्यों? अगर ये माइनस क्यू रखा होता तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ कुछ ऐसे ही होती? It will originate from plus q and terminate on minus q, and they will be perpendicular to the infinite plate that we are having, right? तो ये हमने कैसे किया? हमने लॉजिक लगाया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया, और just we assumed it, right? So we can say that minus q is the image charge of plus q, and for all practical purposes, to find electric field, potential, anything, what we can do, we can assume that this is a combination of two charges, plus q and minus q, and we are finding potential electric field at point P, right? तो अब हमारा प्लेट का कोई काम नहीं बचा. एक चीज बची है, that the potential is zero. So प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल आएगा प्लेट पर, माइनस क्यू की वजह से भी सेम पोटेंशियल आएगा, hence the potential is zero. इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल रहेंगे. तो चलो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड, पोटेंशियल जीरो होने की कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी थी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, यस, दैट इज आल्सो सेटिस्फाइड. So okay, minus q is image charge
and we can now find easily and potential and electric field at point P. So let's start with potential. Correct. Let's find potential at P. V at any point P at XYZ. Q की वजह से क्या होगा? K Q by R की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z minus d square. So without the loss of generality, we can write x की वैल्यू यहाँ पर this is 0, 0, d. x और y में 0 और 0, right? Plus potential due to negative charge, that is minus kq by under root of x square plus y square plus z plus d square. ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर. Now we are going to find out the answer of the first question, electric field at the plate. First, let's find out electric field का Z component क्या होगा. For the first part, we are going to find out electric field का Z component, right, at any x, y, z. Why we are finding Z component? We will learn that in a few minutes. Z component क्या होगा? Minus डेबा V by डेबा Z. Z के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर दें. इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? KQ with a negative sign. हम ऊपर वाली टर्म को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. क्या मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट. सो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो -1/2 और पावर हो जाएगी इसकी माइनस का 3/2. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी होल स्क्वायर की पावर 3/2 एंड व्हाट विल कम? z minus d का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन twice of z minus d, correct? So we will get z minus d by this, minus it will become plus, it will come out to be z plus d upon x square plus y square plus z plus d का whole square to the power 3/2. Correct? If we can rearrange it, we can write it as kq z minus d by x square plus y square plus z minus d whole square to the power 3/2 plus z plus d by x square plus y square plus z plus d whole square to the power 3/2. This is the z component of electric field, right, at any point. Okay, wait a minute, this should be negative, right? Yes. Now we want to find out electric field density on the metallic plate. Before that, let's find out electric field, the component of electric field, Z component of electric field at x, y and z equal to 0. That is at the plate, electric field component on the plate. We will get kq as it is आ जाएगा. अंदर हमें क्या करना है? z की वैल्यू 0. z की वैल्यू 0 पे क्या बचेगा? माइनस का d. z की वैल्यू 0 पे क्या बचेगा? प्लस d with a negative sign माइनस का d. So we can write minus 2d डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी z0 तो d स्क्वायर, ये भी d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2. Right, this is the electric field on the plate. Now what we want is we want charge density, right? So we know कि ये हमारे पास जो प्लेट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल.
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली इनवर्ड्स, वर्टिकल है, इतना तो हम कह ही सकते हैं, एट एवरी पॉइंट. So if the direction of electric field is vertical, let's make a simplified view. Let's take a cylinder, correct? This will be, area is dA, charge density, let's say it's sigma, charge density anywhere is sigma. Electric field will be in the outward or in the inward direction, correct? And that means E and dA will be parallel to each other. E and dA will be parallel to. Also, just above the metallic surface, we know electric field will be sigma by epsilon naught. And here integral E dot dA will give you E into dA. Why? Because electric field की direction क्या होगी, perpendicular to the metallic plate, and electric field is zero below the metallic plate, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रखा तो केवल चार्ज Q ही था, नीचे तो कोई चार्ज रखा नहीं था, वो तो इमेज चार्ज है जो हमने माना है, रखा तो नहीं था. तो नीचे there will be no electric field, there will be constant potential, that is zero. ऑब्वियसली जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है वो कहाँ निकाली है, अबव द प्लेट निकाली है, बिलो द प्लेट इट इज जीरो, राइट? पिछले दो क्वेश्चंस का आंसर भी हमारे लिए अबव द प्लेट ही था. अब बात आती है इंटीग्रल ई डॉट डी ए. ई डॉट डी ए हो गया हमारे पास, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा, चार्ज डेंसिटी हमें बतानी है, एप्सिलॉन नॉट वी नो, इनटू डी ए, एरिया, स्मॉल एरिया, correct? We have to find out this quantity, we have to find out sigma. So for sigma what we can do is, for sigma what we can do is epsilon naught e, da से da cancel out हो जाएगा, epsilon naught e कहां पर, when z is equal to 0, and e we already know, e कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास केवल z कंपोनेंट ही तो है, दिस इज z कंपोनेंट ओनली, राइट? और z कंपोनेंट हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इक्वल टू 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, बस इसको एप्सिलॉन नॉट से, इस क्वांटिटी को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. तो सिग्मा कम्स आउट टू बी माइनस का 2kq एप्सिलॉन नॉट माइनस 2kq एप्सिलॉन नॉट d बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2. This is the charge density at any x and y, because plate पे z तो 0 है, right? At any x and y we have charge density, so we can see that charge density is not uniform, it is not uniform at all. जैसे जैसे x और y बढ़ता जाएगा चार्ज डेंसिटी कम होती चली जाएगी, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस ऑल्सो. इस चार्ज का इस पूरी प्लेट पर अगर इफेक्ट देखें तो जैसे जैसे हम x और y में बढ़ते चले जाएंगे origin पर directly 0,0,0, as we move further away the effect of the charge will reduce and the charge density will further reduce, induced charge density will further reduce. Now we have to find out the net charge on the metallic plate. तो उसको देखते हैं, it's a bit tricky, it's a question for double integration, so let's find out. We have this plate, I'm drawing it in this manner. This is an infinite plate, correct? We have charge density given, and what we are going to take, we are going to take an element. वो element होगा हमारे पास एक thin ring. ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ओरिजिन से किसी भी, ओरिजिन से आप किसी भी कोई भी एक रिंग लोगे तो उस रिंग पे क्या चीज कांस्टेंट होगी भाई, z तो 0 है आपका, राइट? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, so this quantity is going to become constant, right? This quantity is going to become constant. तो इस रिंग को लेंगे और रिंग पे भी हम क्या करेंगे, रिंग पर भी we are going at any angle theta and an element d theta. तो थीटा जो है आपका वेरी करेगा कहां से कहां तक,
0 to 2 पाई, और जो रेडियस है रिंग की, ये कहां से कहां तक वेरी करेगी, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और रेडियस कितनी है आपकी, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, रिंग ही क्यों ली, फॉर इनफाइनाइट प्लेट व्हाई डू वी टेक रिंग, क्या रिंग से हमारी इनफाइनाइट प्लेट पूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप ऐसी छोटी 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 रिंग लेते चले जाएं, इन इनफाइनाइट डिस्टेंस इट विल बिकम प्लेट। हाँ, अगर फाइनाइट होती है हमारे पास प्लेट, देन वी कुडंट हैव टेकन अ रिंग, राइट। अभी तो हमने थिन रिंग लेकर इनफाइनाइट प्लेट को कवर कर दिया, बट अगर फाइनाइट प्लेट होती तो वी कुडंट हैव डन दिस। इससे सिमेट्री भी हमें मिली, राइट। बस एक प्रॉब्लम ये आ रही है दैट वी हैव टू वेरिएबल्स एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट ट्वाइस। वी ऑलरेडी नो कि नेट चार्ज अगर हमें निकालना है, क्यू इंड्यूस्ड हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इंड्यूस्ड, और जैसे जैसे वेरी कर रहा है उसको एरिया के साथ इंटीग्रेट कर दें। तो सिग्मा इंड्यूस्ड इनटू डी ए का इंटीग्रेशन विल बी द क्यू इंड्यूस्ड, करेक्ट। अब डी ए लिखना है हमको, डी ए एरिया कितना होगा, तो इस छोटे से सेक्टर का, जो हमने छोटा सा पोर्शन लिया, इसका एरिया देखते हैं। किसी भी आर पे जाके डी आर, तो इसकी विड्थ तो हो गई कितनी, डी आर, और इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये हो जाएगी आर डी थीटा। हमने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो ये वाले, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, और थिकनेस कितनी है इसकी, डी थीटा। तो हमारे पास डी ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर डी थीटा इंटू डी आर, करेक्ट। डी ए हमारे पास है, सिग्मा इंड्यूस्ड हमारे पास है, लेट्स इंटीग्रेट, करेक्ट। वी हैव लिमिट्स आल्सो थीटा और आर पे। तो सिग्मा क्यू इंड्यूस्ड विल बिकम -2k ε0 q, ये तो बाहर आ जाएगा, इवन डी भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन रहेगा, डी ए की वैल्यू आर डी थीटा डी आर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमारे पास जा रही है 0 to 2 पाई एंड आर इज गोइंग फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आसानी हो जाए। साथ में ऐसा करते हैं, के को उठाकर, ये जो के है इसको उठाकर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, -QD/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to इंफिनाइट आर डी आर बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू पावर 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, करेक्ट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आसान हो गया, -QD/RdR/R² + D² की पावर 3/2। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या मान लें, टी, करेक्ट। तो हमारे पास क्या टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो हमारे पास आ गया आर डी आर इक्वल टू टी डी टी, और एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास -QD टी डी टी डिवाइड बाय टी क्यूब, दैट इज 1/t² बचा, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, तो माइनस तो हटा देते हैं, 1/t 1/√r² प्लस d² विद लिमिट 0 to इंफिनिटी। हाँ, तो यहां से क्यू डी इन्फिनिट रखने पे 0 हो जाएगा, और 0 रखने पर, आर की वैल्यू 0 रखने पर 1/d विद अ नेगेटिव साइन, माइनस का आएगा, राइट, 0 माइनस। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का क्यू। तो क्यू इंड्यूस, टोटल चार्ज इंड्यूस कितना हुआ प्लेट पर, -q, और चार्ज डेंसिटी क्या आ रही है एट एनी पॉइंट ऑन द प्लेट, ये आ रही है आपकी -2kq ε0d by x² plus y² plus d² power 3/2, which in itself is a very important result, right? तो हमारा यहाँ तक थर्ड पार्ट तक काम कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट क्या है,
हमें निकालना है फोर्स ऑन क्यू। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम कह सकते हैं कि इस प्लेट और इस क्यू चार्ज को हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट चार्ज क्यू एंड अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। और डिस्टेंस इन दोनों के बीच कितनी हो जाएगी 2d। तो क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन क्यू विल बी इक्वल टू k q1 q2 by r square, r is 2d square. So this becomes attractive force kq square by 4d square. माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, करेक्ट। ओके, this is fourth part, as simple as that. Now comes the fifth part. Fifth part asks us potential energy of the system, right? So to find the potential energy, अब देखो it becomes tricky. क्यों, देखो हमने क्यू चार्ज लिया, जनरली हम जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हम पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं और पॉइंट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, दैट बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते, मतलब करना तो वही है बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू चार्ज अकेला ही तो लेकर आए, वर्क डन जीरो होना चाहिए था, पोटेंशियल जीरो होनी चाहिए थी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। व्हाई, बिकॉज डेफिनेटली जैसे जैसे क्यू यहाँ पर था तो इसकी इमेज चार्ज, इसका इमेज चार्ज यहाँ बन गया, क्यू यहाँ पहुंचा तो इसका इमेज चार्ज यहाँ बन गया, क्यू यहाँ पहुंचा, कहीं भी क्यू किसी भी पाथ से लेकर आए, कैसे भी लेकर आए, उसका इमेज चार्ज साथ साथ चलेगा। किसकी वजह से, मेटालिक प्लेट की वजह से। तो डेफिनेटली अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी लिखना चाहें कि क्यू और माइनस क्यू यहाँ पर है, क्यू और माइनस क्यू यहाँ पर है, अगर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज माइनस क्यू को लाने में आपने वर्क किया है, कैसे किया है, क्योंकि क्यू को लाने में वर्क किया है। तो इट बिकम्स स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज डायरेक्टली इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना। पोटेंशियल एनर्जी का जनरली हम क्या लगाते थे फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, बट यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से लाना ही पड़ेगा। ये इनफाइनाइट से आ रहा है भाई, कहाँ तक, डी डिस्टेंस तक। और जब किसी भी एक्स पर है, किसी भी जेड पर है, सॉरी, जब क्यू चार्ज किसी भी जेड पर है प्लेट से, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो भी वर्क डन कर रहे हैं, कौन कर रहा है वर्क, एक्सटर्नल एजेंट, किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि एक माइनस क्यू भी है, कहां पर, जेड पर, करेक्ट, ये भी जेड। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा क्यू चार्ज को, पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वी हैव टू फाइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, करेक्ट। सो लेट्स फाइंड आउट वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ, फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय 4z स्क्वायर, डी की जगह क्या कर दें, ओ सॉरी, डिस्टेंस हमारे पास कितने 2z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर, करेक्ट, 4z स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज द फोर्स एक्टिंग इनटू dz, z की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो इनफाइनाइट से लेकर d तक, दिस विल बी kq square. We already know that the potential energy is coming out to be negative, right? तो साइन की चाहे तो टेंशन ना लें हम लोग, 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/z इनफाइनाइट से t तक, माइनस मैंने फिर से इग्नोर कर दिया, वी ऑलरेडी नो दैट द साइन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो वी आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट द साइंस, राइट। इफ यू वांट यू कैन, यू विल गेट द सेम आंसर, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास आ गया 1/d माइनस 1/infinity, तो 1/d, तो kq square by 4d, that is the work done. So the potential energy of the system will come out to be minus kq square by 4d. एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का आंसर ये हो गया। नाउ मुद्दा ये आता है कि क्या हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते थे, ऑल्दो द मेथड इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, प्रिसाइज। तो
बट देयर इज अ शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता कि आप बेसिकली Q और माइनस Q इस सिस्टम की एनर्जी निकाल दो, ठीक है, इसकी जो भी एनर्जी आ रही है आप निकाल दो, हाफ कर दो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है आपकी, डायरेक्ट डायरेक्ट वाली, के Q1 Q2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, आर कितना था 2D, और इसको आप क्या कर दो, डिवाइड बाय 2, दैट विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर, राइट। लेट्स टेक वन मोर केस and find out the force. Let's say we have a general shape. This is an infinite plate and we have charges Q. Let's take another charge Q. Let's take one charge as negative. The distance is, let's say, D, and this is also D. और पूछा गया है कि बताओ A पर फोर्स कितना है, फोर्स ऑन A। We can do that। कैसे, B की इमेज चार्ज, B का इमेज चार्ज B डैश प्लस Q रहेगा, A का इमेज चार्ज A डैश माइनस Q रहेगा। अब A पर आपको यूनिट डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस भी D, इंडिविजुअल इमेज चार्ज बता दिए। अब A पर आपने नेट फोर्स निकाल दिया। कैसे, फोर्स ऑन A क्या हो जाएगा, नेट फोर्स B की वजह से K Q स्क्वायर माइनस का बाय D स्क्वायर प्लस B डैश की वजह से K Q स्क्वायर बाय 3D स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए डैश की वजह से है ये माइनस का बाय 4D का स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज द force acting on A. Now if you want to find potential energy of the system, तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, B को लेकर आएंगे, फिर A को लेकर आएंगे, ये काम होगा। या तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट से कर दें, क्या, A की पोटेंशियल एनर्जी लिखी, B की पोटेंशियल एनर्जी लिखी, मतलब हमने हर सिस्टम की लिखी, ए बी बी डैश तीनों की लिखी, ए डैश पहले लेकर आ गए, कोई भी एक चार्ज पहले लेकर आ गए, उसके लिए वर्क डन 0, एंड देन वी हैव फोर चार्जेस की हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 2। या तो डायरेक्टली कर लें या फिर वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन। अब देखो पी के लिए तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सपोज फर्स्ट चार्ज दैट वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा, तो लेट्स से कि पहला चार्ज हम बी लेकर आए, बी के लिए आने के लिए हमने पहले से वर्क लिखा हुआ है, वर्क डन विल बी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4D। कैसे, पहले वाला केस, राइट, पी डैश, ये हमारे पास क्या आया था, माइनस क्यू था, ओके, तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, नहीं वर्क तो अभी भी नेगेटिव ही है, ठीक है, वर्क डन ये आ गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने यही काम किया है। अब लेकर आ रहे हैं ए को, तो ए पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, ए पे फोर्स लगेगा बी की वजह से, बी डैश की वजह से और ए डैश की वजह से, ठीक है। अब एक किसी भी z पर है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज क्यू, सो दिस इज माइनस क्यू, राइट। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टू दैट पोजिशन, एफ डॉट डी एस, फोर्स कितना है, फोर्स लिखते हैं के क्यू माइनस क्यू बाय के क्यू माइनस क्यू, बी की वजह से लिख रहे हैं, डिवाइड बाय जेड माइनस डी का स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बी डैश की वजह से लिख रहे हैं ये हम, ये बी की वजह से था, बाय जेड प्लस डी स्क्वायर माइनस, sorry this is plus, correct, plus k q q, force will be attractive in nature, right, force will be attractive in nature,
माइनस का लगाया, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, डिवाइड बाय 2z का स्क्वायर, f ये a डैश की वजह से, डॉट ds, राइट। z की वैल्यू इन्फिनिट से कहां तक, 2d तक। Now I have calculated this in advance and I will just give you the results. You can do it, right? So the results that are coming out are k q square divided by minus का आएगा 19 by 24. The factor that is coming is 19 by 24, correct? So the total potential energy will become k q square divided by 4d by d plus kq square by d 19 by 24. तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव का आएगा ये, राइट। तो हमारे पास जो नेगेटिव आंसर आ गया वो कितना आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन निकाला, 4 6 19 25 माइनस 25 के क्यू स्क्वायर बाई 24 डी. This becomes your answer. Now let's verify it using our direct approach, correct? तो अगर हमें डायरेक्ट अप्रोच लिखनी होती तो दिस इज the distribution q minus q, q minus q, q minus q. तो इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए लेट्स से सबसे पहले b डैश को लाए, अकेला था, और ऑल्दो वी नो कि इमेज चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, बट वी हैव रिप्लेस्ड इट बाय चार्जेस, राइट। कंडक्टिंग प्लेट हटा दी हमने कहा ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, राइट। तो बी डैश लेकर आए 0 वर्क। अब बी डैश के प्रेजेंस में हम अगर बी को लेकर आए तो कितना वर्क किए, के क्यू स्क्वायर बाय 2d, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2d, ए से ये वाली डिस्टेंस है 3d और ए से ये वाली डिस्टेंस है 4d, वी ऑलरेडी नो दैट, राइट। लेट्स से अब हम इसके बाद लेकर आए ए डैश को, बी और बी डैश आ चुका है, तो पहले बी डैश के लिए वर्क लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा, वर्क डन के क्यू स्क्वायर बाय 2d, सॉरी बाय d विद अ नेगेटिव साइन, बी डैश की वजह से, और बी की वजह से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी 3d, 3d। अब हमारे पास ए डैश भी आ गया, अब आएगा ए का वर्क, ए का वर्क कितना हो जाएगा, बी की वजह से के क्यू स्क्वायर माइनस बाय डी प्लस बी डैश की वजह से 3d डिस्टेंस है, के क्यू स्क्वायर बाय 3d, और ए डैश की वजह से माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4d। अब इन सबको हमें क्या करना है, बस ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो के क्यू स्क्वायर तो सबका कॉमन निकाल देते हैं, -1/2 -1 -1 बाय +1/3 -1 माइनस ये 1/2 1 1/3 1 1/3 प्लस का -1/4, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास के क्यू स्क्वायर -1 -1 -2 +1/3 +1/3 2/3 2 + 2/3 -1/4 -1/2 -3/4, के क्यू माइनस का 2 -1 -1 -2, तो टेकिंग द एलसीएम we get 12 minus 24 plus 8 minus 9 minus 1 minus 25 by 12, तो ये आ गया आपके पास माइनस के क्यू स्क्वायर 25 by 12। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, राइट। ये टोटल वर्क था, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर माइनस 25 by 24, विच इज आई थिंक प्रीवियस आंसर से मैच कर रहा है।
KQ² 24। डी हमारा कहीं मिस हो गया क्या? हाँ, डी हर जगह था, फॉरगॉट। करेक्ट। डिवाइड बाय 2 करने से भी हमारे आंसर्स आते हैं। आप सिस्टम की एनर्जी लिखें और एनर्जी के बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। करेक्ट, विच इज सेम। दिस इज अनदर क्वेश्चन। वी कैन से वन मोर क्वेश्चन। वी कैन सी वन मोर क्वेश्चन। इसमें आपको बस ये बताना है कि नंबर ऑफ इमेज चार्ज क्या होंगे। जैसे आप ये बता सकते हो कि प्लेट्स की वजह से जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, राइट? लेट्स से वी हैव 2 infinite plates. We have 2 infinite plates. Correct? ये क्वेश्चन एक्चुअली ग्रिफिथ में है, but it is for engineering persons. Let's we are solving it just for the sake of it because it is fun. It is generally related to geometrical optics. उससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, इसका कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, a, b। कोई भी चार्ज है q। ये पूछा है कि इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से, और ये ग्राउंडेड भी है, ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या है? 0, राइट? इस क्यू चार्ज पर इन प्लेट्स की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स निकालने के लिए पहले आपको बस ये बता दें कि इमेज चार्जेस कौन कौन से हैं। इमेज चार्ज पता चल गए तो आप फोर्स निकाल पाओगे, ठीक है? तो इमेज चार्ज क्यू का हमें सीधे सीधे देख के पता चलता है कि यहाँ पर -q आना चाहिए विथ कोऑर्डिनेट्स। ए की ए रहेगा, बी का -b हो जाएगा। एक वर्टिकल प्लेट के साथ यहाँ पर आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स -a, b, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो ये हमारे पास इमेज चार्ज आ गए। अब एक चीज आपको मैंने शुरू में जो बताई थी, नाउ इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस वही था, क्या? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? दैट द पोटेंशियल एट द सरफेस इज 0। अब देखो, इस Q की वजह से और इस -Q की वजह से पोटेंशियल क्या है? 0। इक्वल डिस्टेंस, अपोजिट चार्ज। बट इस -Q की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, तो इस -Q का +Q कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और करने के लिए सेम डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो दैट डिस्टेंस विल बी दिस। कितना? +Q, कोऑर्डिनेट्स -a, -b। एक बात। सेकंड बात देखो, लेट्स से इस -Q की वजह से और इस +Q की वजह से वर्टिकल वॉल पर पोटेंशियल 0 हो जा रहा था, बट इस -Q की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल आता, तो इस -Q का पॉजिटिव Q लेना पड़ेगा, और उसका कोऑर्डिनेट भी क्या होता? यही होता। कितना? -a, -b। तो इस Q की, मेन Q की कितनी इमेजेस? 3 इमेजेस। तो बेसिकली ये वही काम है जो हमने किसमें किया हुआ है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। करेक्ट? तो नंबर ऑफ इमेजेस का फिर फॉर्मूला बन जाएगा वही हमारे पास जैसा पहले था। हमारे पास मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होता तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस आ जाती 360 बाय थीटा -1, एंड दिस हैज टू बी, द कंडीशन इज, द ओनली डिफरेंस इज दिस हैज टू बी एन इंटीजर, तभी हमारे पास इमेज चार्ज बनेंगे। करेक्ट? नंबर ऑफ इमेजेस ये क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस। और अगर आपको क्यू पे फोर्स बताना है तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे? -Q की वजह से फोर्स लग जाएगा, सॉरी अट्रैक्टिव लगेगा। -Q की वजह से, वो हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से भी अट्रैक्टिव लगेगा, और +Q की वजह से ये रिपल्सिव लगेगा। क्या ये तीनों फोर्सेस इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं, फोर्सेस अलग अलग होंगे। तो इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट द नेट फोर्स आल्सो, राइट? So there are many more problems that can be found, but we are going to limit our discussion to this level itself. Even this is much beyond JEE, so JEE advanced में इस पे क्वेश्चन बने उसके चांसेस कम है, बट JEE एडवांस में अगर एक कॉम्प्रिहेंशन वो मेथड ऑफ इमेजेस पे देते हैं, then they can definitely ask you some problems, and if they ask you those problems, then you will be well prepared, you won't be surprised, right?
you can do those problems. In my next video lectures, I am going to again start a topic which is as per your demands. And if you have any suggestions, feel free to text them in the comment box. Thank you for watching. Bye bye.